What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Monday, 24th of August and we are in the final week of this month, the week of monthly expiries. Tomorrow is Nifty's monthly expiry and Thursday we have Sensex monthly expiry, and it's going to be very important to see the price action and the volatility pattern, especially on these 2 days, because this is the first time the stock derivatives, stock futures and stock options are going to expire. They are going to settle under this new CAS regime, because even after 3.5 weeks of this new regime, the volumes have not meaningfully picked up during the auction, because abhi bhi auction pe jo volumes hai, they are just 1/10 of the volumes in the VWAP regime. So it's going to be very important to see how the market's volatility behaves tomorrow and on Sensex monthly expiry. And today the markets opened with a slight gap up, but throughout the day the markets got sold into. In fact, today was a smooth downtrending kind of a day, and the markets realized volatility was much higher than what the premiums implied, because 120 rupees पे straddle open हुआ था, almost 35 points का एक crush मिला था, and throughout the day the straddle didn't give any decay at all. And very interesting to notice that on a 1DT, for the very first time after a long time, we have seen that the straddle has closed higher than where it opened. Generally 1DT पे कहीं पे भी straddle खुले, अगर बीच में थोड़ा बहुत स्पाइक आएगा भी तो कम से कम डेज ओपन से नीचे स्ट्रैडल क्लोज होता है. बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव नोटिस्ड दैट द स्ट्रैडल ओपनड एट 120 एंड क्लोज्ड एट 127 एंड इट स्पाइक्ड टू 132 व्हेन द मार्केट्स ब्रोक द यस्टरडेज लो, एंड द मार्केट्स गिव अ 150 पॉइंट का डाउनफॉल, एंड इट्स ओनली ड्यूरिंग द ऑक्शनिंग द मार्केट्स क्लोज्ड हायर, समवेयर अराउंड 24,220 के आसपास मार्केट्स ने क्लोज दिया है. सो मोस्ट प्रोबेबली 24,200 माइट बी एक्टिंग एज सम सॉर्ट ऑफ अ मैग्नेट फॉर tomorrow's monthly expiry. But given the fact that tomorrow is the first monthly expiry under this new regime, anything can happen. There can be extended volatility, so brace for the impact. So let's get to the terminal and let's plan for tomorrow. So intro video में मैं इसी की बात कर रहा था. For the very first time in a long time, we are noticing that on 1DT straddle जहाँ पे ओपन हुआ, somewhere around 120 पे ओपन हुआ and 125 126 के आसपास क्लोज हो रहा है. So which is a very weird kind of a thing, because back in the days when premiums actually behaved in the proper way, we used to see at least a 30 to 40% crush in the premiums. In fact, OTM options 50% से ज़्यादा crush होता था on 1DT, and now the complete dynamics has been changed. And you can notice at 120 say within the first 5-10 minutes the markets actually dropped the premiums to 115. I think यहाँ पे algorithmic flows जो रहता है, तो basically जो time based straddles triangles जो करते हैं, because of that flows, because of that excess supply, the premiums already crushed from 120 to 114. And after that the markets kind of priced the premiums, and finally when the yesterday's low got breached, because ये चीज़ हमने कल के वीडियो में डिस्कस किए थे कि जैसे ये लो ब्रीच होगा तो वी नीड टू गो शॉर्ट, एंड जैसे कल के लो ब्रीच हो गया तो देन सडनली देयर वाज अ रीप्राइजिंग इन द वॉल. सडनली 115 से लेके 133 तक ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का एक स्पाइक देखने को मिला, ऑलमोस्ट 15% स्पाइक देखने को मिला, विच इज़ नॉट अ कॉमन अकरेंस ऑफ लेट. ठीक है, एंड इवन थ्रू आउट द एंड ऑफ द डे देयर वाज अ बिट ऑफ डीके, एंड फाइनली ऑलमोस्ट 1 o'clock से लेके 3 o'clock तक देयर वॉज प्रैक्टिकली नो डीके. ऑलमोस्ट 2 घंटे तक मार्केट्स में कुछ भी क्रश नहीं देखने को मिला, एंड दिस वॉज ऑल्सो सरप्राइजिंग, बिकॉज लास्ट में 3:30 के बाद जब रेफरेंस प्राइस या इंडिकेटिव प्राइस फाइनली प्रिंट हो गया, उसके बाद जो 10 मिनट्स में हेजिंग होता है, तो उस हेजिंग में इनफैक्ट देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वेंट लॉन्ग ऑप्शंस. इनफैक्ट द डिमांड इंक्रीज्ड एंड द सप्लाई डिमिनिश्ड, सो पीपल वर नॉट वेरी कंफर्टेबल टू टेक शॉर्ट स्ट्रैडल्स और शॉर्ट स्ट्रैंगल्स. बेसिकली शॉर्ट वॉल पोजिशन लेके जाने के लिए थोड़ा बहुत लोग डरे, एंड दैट इज वाई ऑलमोस्ट स्ट्रैडल एक 10 पॉइंट स्पाइक देखने को मिला इन द लास्ट 10 मिनट्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं 332 पे स्ट्रैडल 117 पे ट्रेड कर रहा है, एंड 340 पे स्ट्रैडल क्लोज हुआ है 125 के आसपास. सो मार्केट्स आर इन अ वे गिविंग सटल हिंट्स दैट टुमारोज एक्सपायरीज माइट बी वोलेटाइल, बिकॉज लास्ट 3-4 एक्सपायरी ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, स्पेशली ऑप्शन राइटर्स के लिए काफ़ी स्मूथ काइंड ऑफ एन एक्सपायरी हुआ है, एंड टुमारो माइट बी दैट डे वेर द फर्स्ट वोलेटाइल एक्सपायरी आफ्टर द CAS regime. बिकॉज इफ यू नोटिस सिंस द स्टार्ट ऑफ CAS मार्केट्स में रियलाइज्ड मूव्स जो है काफ़ी कम हो चुका है. पूरा दिन मार्केट 30-40 पॉइंट के रेंज के अंदर रहता है. इवन ऑन द एक्सपायरी डेज, येस देयर माइट बी 1 or 2 मूव्स विच विल गिव वन सम स्पाइक्स, एंड आफ्टर दैट अगेन द मार्केट गोज इनटू सम साइडवेज काइंड ऑफ एन एक्शन. तो पहले जैसे हम देखते थे कि मई में जो मूव्स आए थे तो सडनली 200 पॉइंट अप मूव, 200 पॉइंट डाउन मूव, ऐसे मूव्स हमको अभी देखने को नहीं मिला है. बट अगर इस रिजिम में ऐसे मूव्स देखने को मिलता है, देन ऑप्शन राइटर्स आर हियर टू टेक मैसिव
losses. Because again, I'm reiterating how the entire zero DT game has changed. Because पहले कैसा रहता था, let's say even 90 rupees 100 rupees पे अगर straddle open होता है तो ये 100 rupees भी it was a potential gain for the option writers, because कहीं ना कहीं इस ऑप्शंस को जीरो करने के लिए ऑप्शन राइटर्स ट्रेड करते थे. ठीक है, अब क्या होगा, अब स्ट्रैडल ओपन होता ही समवेयर अराउंड 90, लेट्स अज्यूम दैट 100 के आसपास ही ओपन होगा, बट कम से कम 50 रुपीज़ ये होल्ड करेगा टिल 315 तक ये 50 रुपीज़ होल्ड करेगा. सो बेसिकली ये 50 रुपीज़ का क्रश के लिए ही ऑप्शन राइटर्स ट्रेड कर रहे हैं, एंड taking extreme amount of gamma risk for only this much amount of theta decay is not risk reward justified. ठीक है, तो अगर 50 पॉइंट को ही हम लोग डीके खाने के लिए बैठे हैं या क्रश खाने के लिए बैठे हैं, तो then taking this much of gamma risk, especially as this much close to the expiry, doesn't make sense whatsoever. So that is why अगर मान लो मार्केट्स में 100 रुपीज़ का स्ट्रैडल है एंड सडनली मार्केट्स 100 पॉइंट्स एंड 100 पॉइंट्स अप एंड डाउन भी मूव कर देता है, तो देन दैट वुड लीव ऑप्शन राइटर्स विद सिग्निफिकेंट लॉसेस. इनफैक्ट मल्टीफोल्ड लॉसेस. जनरली उनका एवरेज प्रॉफिट जो रहता है उसका कम से कम 2-2.5 गुना लॉस हो सकता है. आई होप दैट शुड नॉट बी द केस टुमारो, बट कंसिडरिंग मार्केट्स monthly expiries tomorrow, nothing can be ruled out, and I am kind of positioning myself for an extended amount of volatility. ठीक है, तो अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो क्या हो सकता है कि लाइक अगर मार्केट्स, बिकॉज CAS के टाइम पे मार्केट्स यहाँ पे क्लोज दिया है, सो वी हैव टू अज्यूम दैट देयर इज वन ग्रीन कैंडल हियर एंड यहाँ पे 150 इज द लो. ठीक है, अगर मार्केट कल फिर से थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है एंड 10 o'clock के पहले ये लो को ब्रीच कर देता है, तो देन बी वेरी केयरफुल, बिकॉज 24,000 लेवल इज ऑल्सो ऑन द कार्ड्स. बट अगर यहाँ पे ब्रीच हो जाता है तो देन वी गेट अ डिसेंट अपॉर्चुनिटी टू गो शॉर्ट. इनफैक्ट यहाँ पे मैं एट द मनी एंड वन स्ट्राइक ITM कॉल्स को मैं शॉर्ट करके आई वुड नॉट एट द पुट्स. डेफिनेटली लाइक मैं थोड़ा डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स को कल अवॉइड करूंगा, बिकॉज अगेन एज आई एम सेइंग टुमारो इज द फर्स्ट एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी अंडर CAS. तो स्टॉक ऑप्शंस में रोल ओवर कैसे होंगे, स्टॉक ऑप्शंस में लास्ट मोमेंट में वॉलिटिलिटी कैसे आएगी, वो सब देखना पड़ेगा. एंड दैट इज वाई अगेन अगर मार्केट गलती से 24,030 के आसपास आएगा तो देन डेफिनेटली वी कैन शॉर्ट 24,000 पुट्स. बिकॉज अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल को ब्रीच भी करता है तो देन आई डोंट थिंक 24,000 के नीचे क्लोज करना चाहिए. ऑफकोर्स देयर विल बी अ मोमेंट ऑफ स्केयर फॉर द 24,000 पुट राइटर्स, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत लिक्विडिटी स्वीप करके मेरे हिसाब से 24,000 के ऊपर ही क्लोज देना चाहिए. ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे ब्रीच करता है तो इमीडिएटली हम लोग कॉल्स को शॉर्ट करेंगे एंड विल वेट फॉर द मार्केट्स टू कम समवेयर अराउंड 24,040 और 24,050 लेवल्स, एंड यहाँ पे हम लोग पुट्स को ऐड कर सकते हैं. नाउ व्हाट इफ द मार्केट ओपन्स बिलो टुडेज लो, अगर आज के लो से अगर नीचे अगर ओपन कर देता है बहुत ज़्यादा, लाइक 24,100 या 24,100 के नीचे अगर खुल जाता है, तो देन देयर माइट बी रिप्राइसिंग ऑफ प्रीमियम्स मोस्ट प्रॉब्ली 100 के ऊपर खुलना चाहिए, एंड दैट वुड ऑफर 24,000 पुट्स एट डिसेंट प्रीमियम्स. तो मैं 24,050 पुट्स होने दो या 24,000 पुट्स होने दो, मैं फर्स्ट टिक पे ही मैं शॉर्ट करना पसंद करूंगा बिकॉज ऑफ दिस बिग गैप डाउन. एंड अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच करेगा देन आई विल स्टार्ट एडिंग द कॉल्स, प्रॉब्ली 24,000 कॉल्स, एंड ट्राई टू मेक इट अ straddle and try to pin the expiry somewhere around 24,000 levels. ठीक है, now what if the market gaps up, because लास्ट में मार्केट्स ने यहाँ पे बेस बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस बनाया, यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन जैसे दिया एंड उसके बाद मार्केट्स ने एक हायर क्लोज दिया है CAS में. I mean, yeah, these candles are very annoying. These candles are very, बहुत ही noisy लग रहा है मुझे. But yeah, whatever, it's what it is. तो 24,216 के आसपास क्लोज हुआ है. तो फॉर एन ऑप्शन राइटर अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 24,250 के आसपास खुलता है, that would be a very good situation, because हमको दोनों तरफ से मीन रिवर्ट करने के लिए मौका मिल जाएगा. तो 24,250 के आसपास अगर मार्केट ओपन करेगा तो देन जैसे मार्केट 24,300 के आसपास आएगा हम लोग मार्केट्स को मूव को यहाँ पे फेड कर सकते हैं. एंड जैसे मार्केट डे का ओपन के आसपास आएगा, फॉर एग्जांपल यहीं पे दिस वुड आल्सो बी एन इंपॉर्टेंट लेवल. सो 24,200 के आसपास आएगा तो वी कैन इवन एट 24,200 एंड ट्राई टू पिन द मार्केट समवेयर बिटवीन 300 एंड 200, विच कैन बी अ गुड डे फॉर पोटेंशियली ऑप्शन राइटर्स. तो ऑप्शन बायर्स के लिए ऑप्शन बायर्स के लिए हमको मीन रिवर्शन ट्रेड्स ही करना पड़ेगा. तो यू हैव टू वेट फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली कम टू द एक्सट्रीम्स, बिकॉज कल ब्रेकआउट ट्रेड्स मेरे हिसाब से सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, बट मीन रिवर्शन ट्रेड्स में काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है. फॉर एग्जांपल लेट्स से मार्केट्स यहाँ से ब्रेकडाउन दिया एंड नीचे आ रहा है, एंड इफ समबडी वांट्स टू ट्रेड लाइक कॉल ऑप्शंस, लाइक बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए. मैं तो बोला कि मैं 24,000 का पुट्स को मैं शॉर्ट करूंगा या 24,050 पुट्स को शॉर्ट करूंगा, बट इफ समबडी इज एन ऑप्शन बायर दे कैन स्टार्ट बाइंग 1 OTM ऑप्शंस
या इवन एट द मनी ऑप्शंस को भी बाई कर सकते हैं, वेर यू नो लाइक एटलीस्ट लाइक 1:2 1:3 काइंड ऑफ अ रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मेंटेन करके ट्रेड कर सकते हैं, एंड दिस कैन ऑल्सो बी अ गुड ट्रेड. ठीक है. व्हाट इफ द मार्केट ओपन्स द ह्यूज गैप अप, लेट्स से 24,280 के आसपास अगर गैप अप खुलता है, तो देन जैसे मैंने बड़े गैप अप में जैसे मैं पुट्स को मैं शॉर्ट करके वेट करूंगा इस लेवल को ब्रीच करने के लिए, सिमिलरली अगर बड़ा गैप अप होता है 24,300 24,280 के आसपास अगर गैप अप खुलता है, तो देन आई विल शॉर्ट द कॉल्स अबाउट दिस 24,300 लेवल्स, एंड देन आई विल वेट फॉर द मार्केट्स टू गिव अ ब्रेकआउट अबाउट दिस. तो जैसे ये ब्रेकआउट होगा, देन आई विल स्टार्ट एडिंग 24,300 पुट्स एंड ट्राई टू मेक इट अ स्ट्रैडल. अगर ब्रेकआउट नहीं होता है, तो देन आई विल वेट फॉर द मार्केट्स टू कम एंड ट्रेड बिलो दिस लेवल, एंड प्रोबेबली यहाँ पे जब मैं सपोर्ट को ढूंढूंगा, इस सपोर्ट के आसपास फिर से पुट्स को ऐड करके आई विल कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रैडल और अ स्ट्रैंगल, एंड देन आई वांट टू टेक इट टिल द ऑक्शनिंग. ऑल्सो कल के ऑक्शन पे मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, एंड ऑल्सो लाइक माई साइज वुड बी प्रॉब्ली 30% बिकॉज फर्स्ट मंथली एक्सपायरी है, एंड जैसे फर्स्ट CAS की वीकली एक्सपायरी में सब लोग हाथ जलाए थे बिकॉज देयर वॉज अ वेरी वियर्ड प्रीमियम बिहेवियर, बिकॉज 70 रुपीज से स्ट्रैडल ऑलमोस्ट 105 तक स्पाइक हुआ था. तो कल भी एक सिमिलर काइंड ऑफ अ वियर्ड बिहेवियर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो इफ़ यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, यू नो देर इज नथिंग more important than protecting your capital and avoiding giving losses to the markets. So if you're not very comfortable, it's prudent to stay on the sidelines. ठीक है. I'll see you after tomorrow's Nifty expiry. Till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.